Hello student. Today we are going to solve the few numericals from the NCERT. In the previous class we have already derived the three equations of the motion with the help of the graphical method. Now today we are going to solve the few numericals. The first numerical is this one, the example number 8.5, and in this example the question states that a train starting from the rest attain a velocity 72 km per hour in 5 minutes. It means a train starting from what? At rest. That means its initial velocity is equal to 0 km per hour. Its initial velocity is equal to 0 km per hour and attain a velocity 72 km in 5 minutes. That means its final velocity is a 72 km. 72 km per hour, and this speed is attained within t is equals to 5 minutes. Okay, now assuming that the acceleration is uniform, okay, find the acceleration. That means in the first part we are going to find its acceleration, that is a. What is the a? And in the second, find the distance traveled by the train for attaining this speed. That means how much distance traveled by an train. That is let us say we are going to find out s. Okay, this is a given data, and we are going to solve the first. We are going to find out the acceleration of the train, and second one is the distance covered by the train. Now as I know the equation is equals to v is equals to u plus at. Now what we are going to solve? We are need to solve in the first part a. The a is equal to what you get? A is equal to v minus u upon t. Now here v is equals to, what is the v? V is equals to 72 km per hour. Okay, this is a kilometer per hour and time is in minute. It means what we will do? So we will convert this kilometer per hour into meter per second, and the time is also converted into the SI unit, and its SI unit is equal to second. That means we are going to convert the both velocity and the time in SI unit form. As I know the v is equals to, the v is equals to 72 kilometer. It means how many meters are there in a 1 kilometer? That is a 1000 meter, and per hour means upon 3600. So why I written here 3600? Because in 1 hour 3600 seconds are there, and it is a meter per second. In the previous class you also multiply by what? तो let us see कि आपने पहली क्लास में कैसे इसको किया था. 1 0 1 0 cancel out, this 0 is cancel out. So what is this? Is a 5 and this is a 18. If you multiply by 5 upon 18, then the unit is converted into the meter per second. So what you get? 18 4 ja 72. So v is equal to what you get? 20 meter per second. और आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी ट्रेन स्टार्ट हो रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लिया है? द टाइम इट्स टेक 5 minutes. Now I am going to convert 5 minutes into the second. That's why I multiply the 5 by 60 and it's converted into the second. Now what you get? 60 multiplied by 5, that is a 300 second. Okay, as I know t is equals to what? T is equals to v minus u upon a. Now we are going to calculate a. Then a is equals to v minus u upon t. अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो v की आपने वैल्यू निकाली है वो कितना निकला आपका? 20 माइनस क्या? 0 अपॉन कितना टाइम लिया है? तो 3
100, ये सेकंड में है, और इन दोनों का अगर यूनिट कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो व्हाट यू गेट, तो 20/300, 20/300। अच्छा, यहाँ पे सेकंड है और मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट, यू गेट 20/300 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30। एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू व्हाट यू गेट 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, लेट्स वंस अगेन we are going to find out the second part, the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो we are going to calculate its distance. तो distance कितना इसने travel किया है, तो let us say s is equals to what, ut plus, this is the second equation, मैंने second equation use किया है, plus at square. okay? तो s कितना है, we are going to find out, u कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई टी, 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आएगा, 1 इंटू क्या 1/15। थर्ड इक्वेशन से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड इक्वेशन से हमने सोल्व किया है, और कितना आ जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई बाय 300। ओके, अब आपने क्या करा है, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर हुआ क्योंकि टी स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय ये क्या है आपका ए क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपका अगर यहाँ देखें तो मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा आपका 15 2 जा 30। अगर 30 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 10 जा 20। अब कितना आ जाएगा, s कितना आ जाएगा आपका, s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 30। तो 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3000 क्या मीटर। अब इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा 3 किलोमीटर। इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्रेन जो स्टार्ट हुआ है 0 से, अगर उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर होती है, इसका मतलब है कि 20 मीटर पर सेकेंड अचीव करने के लिए उसको एक्सेलरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको 72 किलोमीटर पर आवर को अचीव करने के लिए मिनिमम 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो लेट अस सी, एक बार मैच कर लेते हैं। यस, द आंसर इज अ 1/15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, एंड द सेकेंड इज अ 3 किलोमीटर होना चाहिए, या दिस इज अ 3 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस एग्जाम्पल नंबर 8.6। व्हाट स्टेट्स दैट अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। ओके, तो वंस अगेन आई रीड द क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रॉम का मतलब है ये आपका u आ गया 18 किलोमीटर, टू कहाँ तक पहुंचा है, दिस इज योर द फाइनल वेलोसिटी, और कितना टाइम लिया इसने, दिस द टाइम इज इक्वल टू t। अब व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है a एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद इन दिस टाइम पीरियड, यानी आपको s निकालना है और a निकालना है। एज इट इज जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है एज इट इज ही है। तो अब इसको कैसे करेंगे, लेट अस सी कि अगर आपका इस एग्जाम्पल के अंदर
आपको उन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको u, तो u कितना दिया है उसने 18 किलोमीटर पर आर एंड आपका v दे रखा है 36 किलोमीटर पर आर इन 5 सेकेंड, यानी v जो आपका है वो है 36 किलोमीटर पर आर, और जो टाइम इन्होंने इस कार ने कंज्यूम किया है वो किया है 5 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में। तो अभी मैंने आपको बताया है 18 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे तो इजी हो जाएगा, फिर 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो 18 है और ये 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो नाउ अब इस केस में देखो तो क्या है आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, now multiply 2 into 5, then you got 10 meter per second. This is a final velocity. Now we are going to calculate in the first part A. Now I am applying the formula, first formula, and the first formula is equals to what? This is a V is equals to U plus AT, और v कितना गिवन है आपका, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, u आपका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a आपको कैलकुलेट करना है और कितने टाइम में, तो टाइम गिवन है 5 सेकेंड में, दिस इज अ 5 सेकेंड। अब क्या होगा, इसको इससे माइनस कर लें, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये जो इज इक्वल टू के जब इस टर्म को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इधर क्या है, जो ये आपका 5 है, 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 5 सेकेंड। ओके, और यहाँ पे आपका बचेगा a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमेशा याद रखना कि जब भी आप माइनस करोगे तो ये जो यूनिट है, एडिशन या माइनस में यूनिट आपका सेम होना चाहिए, तभी आप माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस नहीं कर सकते हैं। यानी वेलोसिटी से माइनस होगा, टाइम से माइनस होगा या ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। अब क्या है, दिस 5 and this 5 is cancel out, so what you get 1 meter upon second square। तो this is a acceleration। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में देखिए तो पूछा है व्हाट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस कार, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात करें तो s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो पिछली बार हमने इस इक्वेशन से सोल्व किया था। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको इस वाली इक्वेशन से सोल्व करते हैं, एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इधर ये वाला इक्वेशन यूज करें या ये, रिजल्ट दोनों से सेम आता है, तो हम इससे सोल्व करके देखते हैं। लेट अस सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। तो दैट इम्प्लाइज, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू है आपकी 10, u की वैल्यू कितनी है 5, तो पुट करिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 मीटर स्क्वायर अपॉन
सेकेंड स्क्वायर माइनस u का है 5, 5 5 ज़ा 25 यूनिट का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका, ए आपने कैलकुलेट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करिए 100 में से 25, तो व्हाट यू गेट 75 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2 सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मीटर अपॉन में रहेगा इज इक्वल्स टू एस। अब क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर कैंसिल आउट, इस m के स्क्वायर से a की कैंसिल आउट, और ये क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 75/2, तो व्हाट यू गेट s इज इक्वल्स टू 75/2 मीटर। या इसको आप लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। तो दिस इज अ आंसर। तो लेट अस सी इज इट करेक्ट, लेट अस सी। तो क्या होगा, फर्स्ट इज अ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and second part is a 37.5 meter per second. This is a answer of the question. Now we are going to solve the example number 8.5. What is the question states that? The question states that the brake applied to a car produce an acceleration of what, 8 meter per second square. So this is a that means in the opposite direction of the motion. इसका मीनिंग है ये रिटार्डेशन होगा, आपका क्या होगा, ये रिटार्डेशन होगा। दिस इज अ माइनस वैल्यू। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो यानी कि इससे क्या है, आपको ये बताना है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है। एस कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है आपके पास, ये टाइम गिवन है, यहाँ पे आपको जो है ए गिवन है, और यहाँ पे कार इज स्टॉप, यानी कार क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपका, फाइनली कार क्या हो गया, रुक गया है। दिस इज अ 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एस। आपको क्या करना है, यहाँ से एस को कैलकुलेट करना है। तो एस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मीनिंग है हमारे क्वेश्चन के अंदर u गिवन नहीं है, t और a गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है इसके लिए आपको u कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप जो है दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका मीनिंग है यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, u को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है बिना u कैलकुलेट किए हुए आप आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो लेट अस सी, तो u कैसे कैलकुलेट करें। तो u कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है, तो लेट अस सी कि जो गिवन है फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a इज इक्वल टू व्हाट, लेट अस सी कि क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर दूसरा और देखते हैं क्या है, एंड टाइम टेकन 2 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे रखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम इससे फर्स्ट वाली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन में अगर आप क्या करें, v की वैल्यू पुट करें, तो दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। u आपको कैलकुलेट करना है, प्लस a कितना है
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, तो टी कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो इस सेकेंड के स्क्वायर से 1 सेकेंड कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा ये क्या है आपका अप्लाइड, जो ये है आपका नेगेटिव है, इसमें ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या u ज़्यादा होगा और v कम होगा। तो देखिए इसमें आ भी जाएगा, दिखेगा साफ साफ, ये कितना हो जाएगा 12 u प्लस 12 मीटर अपॉन सेकेंड। अब क्या करना है, इसको u की वैल्यू निकालनी है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 मीटर है तो इसको उठा के लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस सी इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्यों, क्योंकि u क्या होगा, a क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, a क्या होगा देखिए नेगेटिव होगा, इसलिए आपका जैसे a आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा u आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट s, तो s इज इक्वल टू क्या होगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। लेट अस सी u कितना है आपका 12 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 1/2, ए कितना है आपका -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, एंड टाइम कितना है आपका 2, तो 4 सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या होगा यहाँ पे सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर कैंसिल आउट, इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको 12 2 जा 24 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 मीटर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -3 मीटर। तो अगर सोल्व करो तो कितना आएगा आपका, ये माइनस कर लें तो कितना आता है आपका 21 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कार है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक, दैट इज अ 21 मीटर। तो लेट अस सी, सॉरी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 3, ये आप मैं भूल गया था, 4 इंटू 3, दिस इज़ अ 12, तो यहाँ पे 12 आएगा, दिस इज़ अ 12, तो 24 में से 12 को माइनस करेंगे, तो 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12, तो दिस इज़ अ 12 मीटर। तो आई थिंक सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट अस सी, तो दिस इज़ अ 12 मीटर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन ड्राइव सोल्व द क्वेश्चन। नाउ आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, इससे भी आंसर आपका 12 मीटर ही आएगा, और आप यूनिट्स को ध्यान रखें तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। नाउ तो ये एग्जाम्पल्स थे आपके, ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7। तो इस एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो हम उस जो भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस करिएगा उसका मैं आंसर कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दे दूँ। तो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में जो है ये इसके अनसोल्व्ड जो है क्वेश्चंस हैं इसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास विद दिस टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।